लेट देख। तो स्नोफ्लेक्स कैसे बनता है उसका आंसर दे रहे हैं, एक पानी की बूंद। एक तो पहली बात, वहां स्नोफ्लेक्स होता क्या है, बर्फ गिरती है, जहाँ पर बर्फबारी होती है वहां बर्फ का एक पैटर्न हो जाता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में गिर रही होती है बर्फ। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न के बनने का रीजन क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं, अभी एक और वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे फ्लैक्स स्नोफ्लेक्स जो है किस अलग अलग रूप में गिर रही होती है। उसके बयान का साइंस साइंस पूछ रहे हैं कि वो कैसे बन रहा होता है। तो A जब dust पानी की particle बूंद or गिरती pollen है, forming a tiny ice crystal. However, when water जब पानी गिरता है तो डस्ट पार्टिकल के कारण से एक आइस का क्रिस्टल बन जाता है। बर्फ और आइस में बहुत फर्क है, ओला और बर्फ में जैसा फर्क है ना, तो ओला जो बनता है ना वो डस्ट पार्टिकल से ही बनता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो है डस्ट पार्टिकल से ये ओला बन जाता है। freezes, its molecules arrange themselves in a hexagonal pattern, thus giving the crystal a hexagonal shape. और जब वो इस तरह से आइस का रूप में जमता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हेक्सागोनल शेप में सेट हो जाते हैं। किस कारण से हो जाते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा वीडियोस देखना पड़ेंगे ये Now, समझने as के the ice crystal keeps falling, it comes in contact with more water. As a result, the water starts freezing on लिए। जैसे जैसे वो नीचे गिरते जाता है उसके किनारों पर पानी फिर से जो है वो जमता जाता है, उसका शेप कुछ इस प्रकार से हो the जाता है। six corners of the ice crystal, causing branches to grow on the corners and thus giving us a beautiful snowflake. इस टाइप का आपको बर्फ का स्नोफ्लेक Also, मिल जाए। as the atmospheric conditions are the same on all sides of the snowflake, the branches grow identically, thus making the snowflake symmetrical. But since every snowflake follows a different pattern to the ground, it encounters different atmospheric conditions. Hence, अलग अलग तरह के हो सकते हैं स्नोफ्लेक्स, और वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, ऊपर का तापमान कितना है, बीच का कितना है, नीचे का कितना है, उसके हिसाब से उनका शेप अलग it is अलग हो said जाता that है। no two snowflakes are the same. They all tend to be unique. और हर एक यूनिक होता है, हर एक स्नोफ्लेक्स दूसरे से यूनिक होता है। तो ये स्नोफ्लेक का आंसर था। और अब एक बार वो देख लो कि दिखते कैसे हैं स्नोफ्लेक्स। 1800 के करीब जो है एक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन किया था। You are a अ, beautiful and unique. Holding a sheet of black fabric and a turkey feather in the other hand, waiting for a snowflake to fall in just the right spot. And when it did, he put that snowflake under a इन्होंने snowflake ever माइक्रोस्कोप में taken. देखे थे। Wilson Bentley, like, seriously loves snowflakes in the sense that he never got married. इतने सारे स्नोफ्लेक्स उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से देखे, और 50 साल तक उन्होंने शादी नहीं करी, इतने ज्यादा पसंद आ गए थे उनको स्नोफ्लेक्स जो है, उन्होंने स्नोफ्लेक्स पे अपने लाइफ बिता दिया। 50 सालों तक स्नोफ्लेक्स के Never ऊपर ही moved जो है out of वो his mom's house, and basically just took pictures of snowflakes for like स्टडी 50 करते रहे। years. Now, he called them masterpieces of design. Of course, we know there is no design in a snowflake, but that doesn't make them any less amazing. Every plate, every branch, every needle on a needle on a needle, ये जो बन रही है ना ब्रांच, पानी के गिरते जाने से, पानी के मिलते जाने से ये ब्रांच बनती जा all रही of those details are what's called emergent properties. This is complexity that's based on very simple rules. And for snowflakes, those rules go back to the basic laws of physics. In the air or in liquid, water molecules are zipping around, bouncing off of each other and everything else trillions of times per second. We have no way of knowing where they are or what direction they're facing at any moment. As we remove मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं वाटर के कैसे रहते हैं अंदर से। heat, it gets colder, and those water molecules start to slow down. Eventually, their atomic attraction, the actual hydrogen bonds between water molecules, takes over and they settle into order. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अपने आप को सेटल कर लेता है और इस शेप में चला जाता है, It sounds complicated, but we just call that freezing. The और structure उसी के कारण से फ्रीज हो जाता है। of a हाइड्रोजन snowflake बॉन्ड can be बॉन्ड एक found in प्रकार का just स्ट्रक्चर बना 6 लेता water molecules. I know that the angle between any two hydrogens is about 105 degrees. And I know that's true for any water molecule in the entire universe. है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो एंगल बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो एंगल बनाता है वो 104 डिग्री का होता है। और यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ आप, वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एंगल होगा वो 104 डिग्री का ही And होगा, for some of those water 104 डिग्री का molecules, well, कोण। the other hydrogens behind them. तो इस प्रकार से दिखाई देता है, रियल का पानी का आइटम इस प्रकार से दिखाई देता है, बीच में ऑक्सीजन है
और इस साइड जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दिखाई नहीं Just देता है like क्योंकि that, वो पीछे साइड है। we've uncovered the six-fold symmetry of a जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है, दो मॉलिक्यूल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक हो सकता है इसके पीछे हो ब्लू, तो दिखाई नहीं दे रहा है। snowflake crystal. That crystal starts as a tiny speck of dust or pollen which catches water vapor out of the air and eventually forms the simplest of snowflake shapes, tiny hexagons called diamond dust. डायमंड डस्ट कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लेक्स का। जो स्नोफ्लेक का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, वो डायमंड डस्ट कहलाता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से ऐसा हो रहा होता है, वो एक षटकोण बना And रहा होता then है। randomness takes over. There's a very simple reason why a snowflake's arm grows out here and not here. It's just because it sticks out farther and has a higher probability that water molecules will land there. And more water molecules and more water molecules land. और ये जो स्टार्टिंग का जो हेक्सागोनल शेप बन जाता है ना, उसके कारण से काफी हद तक चांसेस जो पानी गिरेगा वो यहीं आएगा। पानी अगर सामने गिरेगा भी नहीं, मतलब पानी टकराएगा भी ना, तो चांसेस इसके कोनों पे ही गिरने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि पानी इनके कोनों पे ही टकराएगा, और उसी के कारण से पानी जो है वो जमता हुआ चला जाता है इसके कोनों पे, और Now we got an arm, स्नोफ्लेक का and another रूप ले arm, लेता है। and another arm, and on, until we get the intricate and beautiful shapes that we know and love. Depending on temperature and बहुत humidity, सारा साइंस है इसके पीछे, बहुत ज्यादा डीप में भी है, इतना डीप में Chemistry is जाके। in everything, including snow. ये Crystallography देखो allows बर्फ गिरती है ना, तो वो us to अपने एक study पर्टिकुलर the शेप में arrangement of गिरती है, atoms in a हमेशा नहीं snowflake होता है crystal, ऐसा। though they all start pretty much the same. एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में गिरता है, और लगातार कंटिन्यूस बर्फबारी होना चाहिए, और पानी की मात्रा भी वायु में होना चाहिए, है ना। आप अभी इंडिया में चले जाओगे तो नॉर्मली ऐसे इस प्रकार के स्नोफ्लेक बहुत कम दिखाई देंगे, Once they बहुत begin कम। crystallizing, it's true that no two snowflakes are alike. In fact, the number of possible shapes is staggering. The dust grain, and the resulting droplet turns directly into हर चीज वही बोल रही है कि पानी का पार्टिकल ऊपर से गिरता है तो डस्ट फ्लेक उसके अंदर चला जाता है, और ice. उसके बाद Crystal faces appear on the frozen droplet. Then a जम prism जाता है वो। forms with 6 faces and a top and bottom. A cavity forms in पहले each prism 6 face because phase ice का grows बनता है, fastest उसके near बाद the edges. Faster growth on the corners causes 6 branches to sprout. The lines in each branch are due to ridges and grooves on the surface. एक के These बाद 6 एक जो branches है वो form the corners of a hexagon, जुड़ते जाते which हैं, occurs मॉलिक्यूल because जुड़ते the water जाते हैं, और molecules chemically bond into a hexagonal network. When the temperature cools to minus 13 Celsius, new growth at the branch टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं ऊपर, टेम्परेचर चेंज होते tips जा रहा है, उसके कारण narrows. से At शेकिंग minus होते जा रहा है। 14, side branches sprout on each branch. Suddenly, the crystal encounters a quick blast इतना of warmer टेम्परेचर हर कहीं नहीं air, होता। followed by cooler air, and more side branches sprout. The crystal gradually warms, making the tips long and narrow. The crystal encounters even warmer बेसिकली आपको ये समझना है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती जाती है, स्नोफ्लेक का आकार भी चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली। देखो टेम्परेचर -13 air, है, which slows the growth कम ज्यादा and हो रहा है। widens the tips. Finally, this ये वीडियो unique अपने and आप में delicate structure falls to the earth along with countless other snowflakes. Cool, right? Over the years, crystallographers have been classifying snow crystals into different categories. इतने टाइप के होते हैं रियल में, देखो कितने खूबसूरत है, और प्रकृति बना रही है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। बर्फ के जो क्रिस्टल होते हैं, जो स्नोफ्लेक्स होते हैं, वो इस तरह के हो सकते हैं, और सबका एक ही रूल है, सभी के बनने का एक ही रीजन है। गिरने के कारण टेम्परेचर में चेंज आता है, डस्ट पार्टिकल बीच में आ जाता है, उसके कारण से पहले षटकोण बनता है, उसके बाद जो है टेम्परेचर जैसे उससे उसको अलग मिलते जाएगा, उसके अलग अलग शेप बनते जाएंगे। तो कितने खूबसूरत हैं, और बहुत टाइप के होते हैं, उनको नाम भी दे दिया है, स्टेलर, कैप कॉलम, प्लेट, ब्रॉड ब्रांच, स्टैंडर्ड डेंड्राइट, ब्रॉड ब्रांच, है ना। कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, रियल में बनते हैं ये। इंडिया में बहुत मुश्किल है देखना, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर है नहीं, स्नो के लायक ही नहीं है पहली बात तो, ऊपर से स्नो हो भी जाएगी तो अपने यहाँ जो है वो इतना माइनस में टेम्परेचर होगा नहीं, नॉर्मली बर्फ के रूप में गिर रही होगी। मेरे ख्याल से बर्फ और ओले में सभी फर्क समझते हैं, ओले गिरते हैं हमारे इंडिया में ज़्यादातर, बर्फ नहीं गिरती है। ओले गिरने का कारण है ऊपर टेम्परेचर कम हो जाना, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होना। ऊपर से जो है वो पानी जो बर्फ बादल से गिरता है, वो टेम्परेचर कम होने के कारण से जम जाता है, डस्ट पार्टिकल के कारण से जम जाता है, वहाँ क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं उस पानी के, जो बादल में रहता है ना पानी, उसके डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों के कारण से वहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और ओले बन जाते हैं, वो ओले नीचे गिर रहे होते हैं। तो इंडिया में ओले गिरना कॉमन है, वो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से हो जाता है। बर्फ और ओले में यही फर्क है, बर्फ जो है वो
पानी गिर रहा है, नीचे के टेम्परेचर कम होने के कारण से पानी जम जाता है, तो स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर पूरी तरह से जो है वो ठंडा रहता है, जबकि ओले में जो है वो केवल बादलों का टेम्परेचर कम होता है, नीचे का टेम्परेचर वही गर्मी वाला या उमस वाला होता है। उसके कारण से इंडिया में ओले गिरते हैं, ज्यादातर बर्फबारी नहीं होती है। आई होप समझ गए होगे। भैया हम्म, मुझे एक पूछना आवाज था। कट रही है, बहुत कट रही है। फिर से फैक्ट क्या अभी भी करती है? बिल्कुल कट कट के आ रही है। मेरे ख्याल से टाइप कर दो तो ही अच्छा रहेगा। इंटरनेट के वहां पर बहुत दिक्कत ये होता है बहुत रात में। बड़ा क्वेश्चन है। हाँ भैया, बहुत क्वेश्चन है इसलिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर। मेरे ख्याल से टाइप कर दो वही अच्छा रहेगा। चलो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन, यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम जो है वो विविधता को दिखा रहा है। विविधता को दिखा रहा है। विविधता मतलब ये जनक कोशिका है, पेरेंट है, उसकी जो अगली पीढ़ी आ रही है वो देखो ब्लू नहीं होते हुए, देखो इसमें भी अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कलर दूसरे जो दिखा रहे हैं ना, वो दिखा रहे हैं कि ये नए लक्षण उत्पन्न हुए हैं इसमें, और वो लक्षण जो है अगली पीढ़ी में भी गए, है ना। जो लक्षण थे वो चेंजेस एक तरह से बताना ये चाह रहा है डायग्राम, जनन के दौरान विभिन्नताएं आ रही हैं, कुछ विभिन्नताएं आ रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप अक्कलदाढ़ ले सकते हो। अक्कलदाढ़ बहुत अच्छा उदाहरण है, अवशेषीय अंग के अंतर्गत आता है हमारा। हमारे पूर्वजों की अक्कलदाढ़ जो है वो काम आती थी उनके। अक्कलदाढ़ होती है हमारी दाढ़ का सबसे आखिरी हिस्सा, 32वां दांत भी बोल सकते हो आप उसको। वो हमारे पूर्वजों के काम आता था क्योंकि उनको ज्यादा दांतों की जरूरत होती है। धीरे धीरे अक्कलदाढ़ कम होती जा रही है, और चांसेस है कि आगे आने वाले मनुष्य के दांतों में जो है वो अक्कलदाढ़ होगी नहीं। अच्छा, आपने एक फैक्ट देखा था कि अगर हम दुनिया की सबसे शांत जगह में 1 घंटे भी रहते हैं तो हम बहरे हो जाएंगे। कैसे? अगर शांत जगह पर 1 घंटे रहते हैं तो हम बहरे हो जाएंगे। फैक्ट मेरे ख्याल से कुछ हद तक सच्चाई हो भी सकती है इसमें, मुझे ज्यादातर लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है ऐसा। हाँ, हमारे कानों पर जो है वो प्रेशर के कारण से ऐसा हो सकता है। आप जब ऐसी जगह पर होंगे जहाँ शांत माहौल है, साउंड नहीं है यदि, उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में, तो वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि आप तक साउंड नहीं आ पा रहा है और आप बहरे हो सकते हो। हालांकि अगर आप कहीं गुफा में गए हो, कहीं बहुत ज्यादा दूर, तमाशे से दूर बहुत ज्यादा, हाँ वहां पर दाब जरूरी नहीं है कि प्रेशर इतना ज्यादा हो, और पर ऐसी कई जगह पर है, शांति से रहा जा सकता है, और कई लोग रहे हैं, तो पूरी हद नहीं तक बात भैया, एक कमरा बनाया है और उसमें कोई व्यक्ति जाता है तो वो 40 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। वो बहरा हो जाएगा अगर 1 घंटे भी रह लेगा तो। हाँ, उसके पीछे रीजन वही होगा। अगर कमरे को पैक करके एयर मॉलिक्यूल्स हटा ले रहे हैं, उसको निर्वात बना रहे हैं, तो वहां पर बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज है। अगर वह कमरा नॉर्मल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आसानी से रहा जा सकता है 1 घंटे, कोई कानों पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, वहाँ की हाँ फिजिकल भैया। अपीयरेंस में अगर चेंज ला रहे हैं। भैया माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया वो कमरा, और कहते कि वहाँ इतना शांत रहता है कि अपनी शरीर के में से खून बह रहा होता है ना, तो उसकी भी आवाज आने लग जाती है। 45 मिनट तक इससे ज्यादा कोई रह नहीं पाता। हाँ, तो जो कृत्रिम वातावरण वहाँ बनाया होगा भैया, उन्होंने। हाँ, भैया जब है ना कान पे चोट लग जाती है तो हमें कम क्यों सुनाई देता है? बता रहा हूँ बेटा। जो कमरा उन्होंने बनाया होगा, जैसा यदि आप बोल रहे हो, तो उस कमरे में चांसेस हैं उन्होंने कृत्रिम माहौल प्रोवाइड किया होगा। अगर कृत्रिम माहौल प्रोवाइड नहीं किया है, वहाँ के प्रेशर में कुछ चेंजेस नहीं लाए हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके कान खराब होंगे। हाँ, वहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर प्रेशर के साथ छेड़खानी की है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज किया है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी से आपके कानों पर असर पड़ेगा। क्योंकि हमारे कान जो है वो पर्टिकुलर, उन्होंने साउंड को कम करने के लिए, देखो अब जैसा जय ने बोला कि वहां पर जो है आपको खून तक के बहने की आवाज सुनाई दे सकती है,
तो जो खून तक के बहने की आवाज सुनाई दे रही है, तो प्रेशर से पक्के में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया है, या तो एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ाए हैं वहां पर उपस्थित, जिसके कारण से आप खून की आवाज सुन पा रहे हो या अंदर की आवाज सुन पा रहे हो। एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पर भी वहाँ की आपने डेंसिटी पर जो है वो कुछ ना कुछ हमला किया है, कुछ ना कुछ चेंजेस किए हुए हैं, बिना एटमॉस्फेरिक चेंज किए हुए, बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज किए हुए। ऐसा पहली बात तो कमरा बनाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर बना लिया जाता है तो अगर उसमें एटमॉस्फेरिक वातावरणीय जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसमें दाब में, प्रेशर में चेंजेस नहीं लाए गए हैं, तो हमारे कानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर लाए गए हैं तो बिल्कुल चेंजेस, बिल्कुल आपके कानों पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कान एक निश्चित एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करने के लिए बने हुए हैं। अगर हम उन कान को जो है, जैसे मान लीजिए, ऐसा है तब भी हो सकता है जब आप समुद्र की गहराई में जाएं। आप समुद्र के गहराई में जैसे जैसे जाते जाएंगे, आपके जो प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, वो दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और चांसेस हैं आप ज्यादा गहराई पे चले जाएंगे तो कान के पर्दे फट सकते हैं। पानी आपके पर्दों पर इतना दबाव डाल रहा होगा कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। किस कारण से? प्रेशर के कारण से। कान हमारे पूरी हद तक जो है वो एयर प्रेशर पर ही काम कर रहे हैं। सेम केस होगा यदि आप बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाएं, जैसे अंतरिक्ष वाला मामला हो गया। यदि आप वहां पर भी चले जाएं तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, अंतरिक्ष यात्रियों का जो कैबिन होता है, वहां पर उनको कृत्रिम एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है जो उनके नॉर्मल हमारे अर्थ के प्रेशर के बराबर होता है। यदि वो नहीं दिया जाएगा तो चांसेस है उनके कान के पर्दे, चांसेस क्या, फट ही जाना तय है। प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा उनके कान के पर्दों पर और कान के पर्दे फट जाएंगे, बिल्कुल तय है। पूरा के पूरा मसला है प्रेशर का, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, है ना। तो उस कमरे में बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हो, मैं बिल्कुल, मैंने तो सुना नहीं है वैसे, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसका रीजन साइंटिफिक यही है कि एयर प्रेशर के कारण से ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। वहां उन्होंने एयर प्रेशर में कुछ ना कुछ छेड़खानी की होगी, जिसके कारण से ऐसा हो पा रहा है कि वहां 1 घंटा बंदा नहीं रुक पा रहा है। दूसरा डाउट था कि कान पे चोट लगती है तो हम सुन क्यों नहीं पाते हैं। अगर हमको कान पे चोट लगती है या फिर कोई तेज ध्वनि सुनाई देती है तो हमारे कान के जो आंतरिक कर्ण है, आंतरिक कर्ण एक तरह से सेंसर है जो कि ध्वनि आवृत्तियों को एक्सेप्ट कर रहा होता है। हमारा जो पर्दा होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, उस वाइब्रेशन को चेंज करता है। हमारा इंटरनल कान जो है वो चेंज कर रहा होता है उन वाइब्रेशन वाले सिग्नल को और मस्तिष्क को भेज रहा होता है। जब कोई तेज ध्वनि सुनाई देती है हमारे कानों को, तो तेज साउंड सुनाई देता है या कोई चोट पड़ती है, तो उस चोट के कारण से वहां पर्दे की कोशिकाओं पर असर पड़ता है, डिफरेंट काइंड का, अलग तरह का असर पड़ता है, और वो जो है वो एक तरह से डैमेज हो जाती है उसके कारण से। उस डैमेज को कन्वर्ट करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए, हमारी आंख जैसे प्रतिवर्ती क्रिया के तहत पलकें झपकाती है ना, कुछ चीज हमारी तरफ आ रही होगी तो तुरंत आंख की पलक जो है वो झपक जाएगी। बीच में आप खास तौर पे खाना बनाते समय ऐसा होता है, आप बघार लगा रहे हो, कोई जीरा उचट कर आपकी आंख की तरफ आया तो आपकी पलक इतनी जल्दी बंद होती है। आप सोच सकते हो कि हमारा आंख ने कितनी तेज, मतलब हमारे मस्तिष्क ने कितनी तेज काम किया होगा उस सिलसिले में। सेम केस जो है हमारा सॉरी, हमारा मस्तिष्क जो है कोई चोट लगने पर या फिर कोई तेज ध्वनि सुनने पर कान को बचाने के लिए वहां की कोशिकाओं को या नर्वस सिस्टम को जो है वो निष्क्रिय कर देता है, ताकि वो डैमेज जो है वो ज्यादा ना हो। उसके कारण से थोड़ी देर रिकवरी लगती है, थोड़ा टाइम लग जाता है हमारे कान को फिर से वैसे का वैसे चालू होने में। तो वहाँ की कोशिकाएं डैमेज हुई हैं, ब्रेन ने वहाँ के नर्वस सिस्टम को काम करने पे लगा दिया है, जिसके कारण से थोड़ी देर के लिए सिस्टम एक तरह से वहाँ का रीसेट हुआ है। तो वो कोशिकाएं वापस अपनी कॉमन चीज में आ रही होती हैं, जिसके कारण से आपको कुछ देर के लिए सुनाई नहीं देता है, फिर धीरे धीरे सुनाई देने लगता है। ज्यादा डैमेज ना हो इसके कारण से हमारा नर्वस सिस्टम जो इस पे काम कर रहा होता है। हाँ, अभी स्टार्टिंग में अच्छी आ रही थी आपके आवाज, फिर से अटकने लगी, मतलब जब आपने इसके पहले पूछा था। वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम, इनसाइड द वर्ल्ड क्वाइटेस्ट रूम, दुनिया का सबसे शांत कमरा। देखें कैसे बनाया है, क्या न्यूज़ है जरा इसके बारे में।
If you stand it for long enough, you start to hear your heartbeat. आप ज़्यादा देर तक रुके रहेंगे तो आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई देने लगेगी. A ringing in your ears become deafening. When you move, your bones make a grinding noise. आप जब चलेंगे तो आपकी हड्डियों के बीच आवाज सुनाई देगी. Eventually, you lose your balance because the absolute lack of reverberation sabotages of your spatial awareness. आप लड़खड़ा जाओगे चलते समय. In this room, a Microsoft headquarters in Redmond, Washington, all sound from outside world is locked out and any sound produced inside is stopped cold. बाहर के साउंड को बाहर ही रोक दिया जाता है और जो इनसाइड प्रोड्यूस होता है वो साउंड को रोक दिया जाता है तुरंत, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है. इट्स कॉल्ड द anechoic chamber because it creates no echo at all, which makes the sound of clapping hands downright eerie. तो वहां पर जो है नॉर्मली हम ताली बजाते हैं या फिर कोई साउंड उत्पन्न करते हैं तो टकराती है ध्वनि और वापस हम तक पहुंचती है, उसको इको बोलते हैं. पहाड़ों में ये इको बहुत ज्यादा तेज से सुना जा सकता है. ये इको को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वहां पर आवाज जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है रूम के दीवारों के द्वारा. The background noise in the room is so low that it approaches the lowest threshold theorized by mathematicians and absolute zero of sound. The next step down is vacuum or absence of sound. This is world's quietest place, deafening silence. As soon as one enters in the room, one immediately feels a strange and unique sensation which is hard to describe, wrote Hunraj Gopal, speech and hearing scientist, the principal decider in a conic chamber at Microsoft in an email. बहुत सारा है, कितना पढ़ेंगे. क्या काय के लिए बनाए हैं? एनाकोइक चेम्बर, एनाकोइक अनइकोइक मतलब जहाँ पर इको नहीं हो रहा. Anechoic chambers are generally used to test noises and sound coming from a variety of products with a high degree of scientific reliability. अलग अलग चीजों से आने वाली साउंड को टेस्ट करने के लिए बनाए हुए हैं, एक तरह से लैब जैसी है. Microsoft uses for audio equipment such as microphone, receiver, headphone, speaker, microphone, इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है ये चैम्बर. Hums of computing device like keyboard, mice, fans and backlight mouse modules on touch panels and display. Among the products that have benefited from the chamber are the Surface line of tablets, an Xbox gaming console and HoloLens VR goggles, but also software. मतलब कंप्यूटर की चीजों को जो है वो चेक करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है. I have spent about 45 minutes in a chamber, and since I have a mechanical heart valve, I can always hear it clearly, wrote Orchid. The longest continuous time anyone has spent inside the chamber is about 55 minutes, confirmed Gopal. मतलब सबसे ज्यादा कोई रुका है तो 55 मिनट रुका हुआ है. I have noticed that there are several folks who can stay inside for 30 minutes or so, but others have asked to go out within a few first second. कुछ ने जो है कुछ सेकंड में उससे बाहर निकलने के लिए बोल दिया था. एक और क्वेश्चन था, हम दुखी होते हैं तो आंसू ही क्यों आते हैं, मतलब दुख का असर आइस पर ही क्यों होता है. तो इसका आंसर में आपको नॉर्मली क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन यही है कि आंसू क्यों आते हैं, है ना. तो बता रहा हूँ. उसका अश्रु ग्रंथि होती है हमारे आंखों के पास, एक ग्रंथि होती है जो नॉर्मली हमारी बॉडी में से क्या बना रहा होता है, आंसू बना रहा होता है नमक का यूज करके. तो वो ग्रंथि एक्टिव हो जाती है जब भी हम भावुक होते हैं ना, तो माइंड जो है उस ग्रंथि को एक्टिव कर देता है. देख लेते हैं उसका आंसर का वीडियो होगा जहाँ तक है उसका. आंसू क्यों आते हैं, बेसिक क्वेश्चन ये हो जाता है कि आंसू क्यों आते हैं, है ना. उसी में आ जाएगा आपका आंसर भी कि कैसे जो है वो. मकड़ी मेरे पास ही क्यों आ रही है पूरे कमरे में, नहीं दिख रहा हूँ. यस. अच्छा, आंसू पीकर देखे किसी ने, खारे लगते हैं खाने में, मतलब पीने. हाँ भैया. भैया वो तो आ जाते हैं मुंह में. कौन बोला सबसे पहले, कौन बोला? पूजू. पूजा. भैया नहीं, पहले मैंने बोला था. पूजा कौन? ने. कशिश. जी मेरी. टेड का वीडियो 4 मिनट का
टेडेड बेस्ट है इसकी साइंस को समझाने के लिए। अगर टेडेड को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर तो कर लो, बिना इसके साइंस अधूरी है Our आपकी। story is about a girl named Iris. Iris is very sensitive. So much that आयरिस जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आयरिस के बारे में स्टोरी जैसे सुना रहे हैं। आयरिस एक तरह से जो हमारी आंख की वो होती है ना, आंख की पुतली। हाँ, एक तरह से पूरी आंख, जो गोला होता है आंख का गोला, उसको आयरिस बोल सकते हो आप। तो आयरिस जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। she is always in tears. She cries when she's sad, when she's happy, मतलब जब खुशी होती है, दुख होता है, हर वक्त रोती रहती है। and even tears up when things just get to her. She has special lacrimal glands उसके पास ये जो अब मैंने बोला था ना अश्रु ग्रंथि होती है, उसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं आंख के पास। अरे यार ये क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं उसके पास, अश्रु to ग्रंथि make होती new हैं tears, and special जो, tubes called lacrimal puncta to drain old ones away. और एक और होती है नीचे जो आंसू प्रोड्यूस भी करने के लिए ग्रंथि होती है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी ग्रंथि होती है। लैक्रिमल पुंक्टा, पुंक्टा, जो भी है पुंक्टा। And she cries so much ये that मुझे अभी पता चला है। she goes through 10 ounces of tears per day, 30 gallons a year. In fact, if you look closely, you'll see that she's crying a little bit all the time. एक्चुअली वो पानी लगातार निकलता रहता है। हम सोते हैं ना, तो भी हमारी आंखों से पानी आता रहता है। रोना बात अलग हो जाती है, रोते समय ज्यादा ही मात्रा में निकल रहा होता है, लेकिन आंखों की नमी बनाने रखने के लिए पानी लगातार निकल रहा होता है। उस ग्रंथि का काम वही है, आंखों की नमी बनाए रखने के लिए लगातार निकल रहा होता है वो। The basal tears that Iris constantly produces form a thin coating of 3 layers that अजीब बात है। जो आंसू होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। बेसल टीयर्स, थिन कोटिंग ऑफ 3 लेयर्स, कीप डर्ट एंड डेब्रिस अवे। जो हमारे धूल वगैरह के कण होते हैं ना, उससे बचाती है cover आंखों। her and keep dirt and debris away. Right next to Iris is the mucus layer, which keeps the whole thing सब आंखों के जस्ट सामने एक म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस एक तरह से चिपचिपा होता है। fastened to her. On top of it is the aqueous शायद नाक को भी म्यूकस ही बोला था। layer, which keeps Iris hydrated, repels invasive bacteria, and protects her एक्वस लेयर लिखा हुआ ना, म्यूकस के बाद एक्वस लेयर लिखा हुआ है, वो पानी वाली लेयर होती है और बैक्टीरिया वायरस को आंखों में जाने से बचाती है। skin, or cornea, from damage. And कॉर्निया को भी finally, डैमेज होने there से is the बचाती है। lipid layer, an oily outer film एक्वस लेयर के ऊपर एक लिपिड लेयर that होती है। keeps the 3 surface लेयर्स होती smooth हैं for आंख के Iris to ऊपर। see through and prevents the other layers from evaporating. Normally, बाकी लेयर्स को बचाती है वो लिपिड की लेयर ऊपर। Iris goes about her day without really noticing the basal tears doing their thing. नॉर्मली आंसू पे ध्यान नहीं देती That's है। kind of their whole point. But one day she meets a girl named Onion. Iris is immediately smitten. Onion looks gorgeous in her bright purple उसको एक दिन जो है वो ऑनियन दिखती है, आयरिस को ऑनियन दिखती है बहुत ज्यादा। jacket, and she smells terrific. So Iris invites Onion to her house for dinner. आयरिस इनवाइट करती है ऑनियन को अपने घर पे। But when she comes in and takes off her jacket, something terrible happens. You see, जैसे जैकेट उतारी तो उसमें जो when है वो Onion's स्मेल आई, jacket is removed, a chemical reaction कुछ happens, केमिकल converting the sulfoxides that made her smell so great into sulfenic acid, which then becomes a nasty substance with a long name. Synpropanethiol S-oxide. बहुत सारी चीज केमिकल, वो प्याज में केमिकल होता है जिसके कारण से आंसू आते हैं। कुछ सल्फोनिक एसिड होते हैं उसमें, जिसके कारण से आंसू बनते हैं। उसका The नाम gas बहुत टफ है। stings Iris, and suddenly she can't help it. She starts weeping uncontrollably. जैसे ही आयरिस को टच होती है वो गैस, उसके कारण से उसके Controllably. आंसू निकलने लगते हैं। These reflex tears are different from the basal tears that Iris is used to. अच्छा, ये Because रिफ्लेक्स they're designed to wash away harmful substances or particles, they're released in much larger amounts. And their aqueous layer contains more antibodies to stop any microorganisms that may be trying. वॉश अवे हार्मफुल सब्सटेंसेस। रिफ्लेक्स टीयर्स हैं। रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती क्रिया के तौर पर निकले हुए, जैसे प्याज काटने पर प्रतिक्रिया के तौर पर जो है वो निकली। वॉश अवे द हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो गैस हमारी आंखों में लग गई है ना, उसको साफ करने के लिए वो निकले हुए हैं। मच लार्जर अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहे होते हैं। कंटेंस एंटीबॉडीज टू स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीवाणु अगर आ गए हैं तो उनको मारने के लिए इसके पास एंटीबॉडीज भी होती हैं, रिफ्लेक्स टीयर्स के पास। trying to get in as well.
Both Iris and अलग Onion अलग are टाइम पे अलग अलग devastated. टाइप के आंसू निकल They रहे know होते they can't continue their relationship if Iris is going to hurt and cry every time Onion takes off her jacket. So they decide to break up. As Onion walks out the हैं। door, उन्होंने Iris ब्रेकअप stops कर लिया crying and क्योंकि उनका immediately ऐसा नहीं starts जम again. Only now she's not crying reflex tears, but emotional tears. अब जो है वो जब ब्रेकअप हो गया तो वो जो है वो इमोशनल टीयर्स होते हैं। तीसरे टाइप का जो टीयर्स हैं वो इमोशनल टीयर्स, रिफ्लेक्स टीयर्स हो गए, इमोशनल टीयर्स हो गए, और एक और ये जो स्टार्टिंग में बताया था वो कौन सा था, वो जो है वो प्रोटेक्टिव टीयर्स थे। प्रोटेक्टिव मतलब हमारी आंख को जो है वो बाहर की चीजों से बचा रहे थे, जीवाणु When बैक्टीरिया someone वगैरह is से either बचा too बचा रहे sad थे। or too happy, it feels like a loss of control, which can be dangerous. So emotional tears are sent in to stabilize the mood as quickly as possible. अच्छा, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो इमोशनल टीयर्स जो है वो हमारे मूड को संतुलन बनाने के लिए निकल रहे होते हैं, माइंड कर रहा होता है उसको, ताकि संतुलन बना रहे हमारी बॉडी में। मतलब हम ज़्यादा खुश ना हो या ज़्यादा दुखी Along ना with other हो। physical reactions such as an increased heart rate and और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम ज़्यादा खुश या दुखी होते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, slower breathing. But सांस भी बढ़ scientists जाती है। still aren't sure exactly how or why the tears themselves are helpful. They साइंटिस्ट अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों हमारी उस चीज़ को, खुशी या दुखी को, दुखी होने के मूड को संतुलन करने के लिए हमारा ब्रेन जो है वो टीयर प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये साइंटिस्ट अभी खोज कर रहे हैं। may be a social mechanism to elicit sympathy or show submission. But some studies have also found that emotional tears contain higher levels of stress hormones, such as ACTH and encephalin, and बोल रहे हैं हमारे जो इमोशनल टीयर्स होते हैं उसमें कुछ स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जो तनाव को जो है कम कर देते हैं। तो ये बात तो सही है यार, रो लेते हैं ना तो थोड़ा-सा अच्छा लगने लगता है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मैंने करा है मैं ये चीज़ महसूस कि अगर रो लो ना तो थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होने लगता है। तो यही यहाँ पर ये वो बोल रहे हैं कि जो इमोशनल टीयर्स होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होने लगता है। एनकेफ्रेलिन भी होता है, endorphin एनकेफ्रेलिन and भी natural हार्मोन ही है। painkiller. In this case, emotional tears are also directly calming Iris down, as well as signaling her emotional state to others. Sorry things didn't work out with Onion, Iris, but don't worry. As long as you have all three kinds of 3 प्रकार के होते हैं, बेसल्स, रिफ्लेक्स और इमोशनल, 3 प्रकार के आँसू होते हैं। अ, और वो जो है वो उसकी ग्रंथि से निकल रहे होते हैं। एक जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जीवाणु वगैरह से नमी बनाए रख रहे होते हैं आँख की। उसकी बाहरी डस्ट पार्टिकल वगैरह से रक्षा कर रहे होते हैं। दूसरा जो है वो किसी जैसे प्याज़ जैसे रिफ्लेक्स टीयर्स होते हैं। प्याज़ जैसे केमिकल वगैरह अगर लग जाते हैं तो उसको वॉश आउट करने के लिए निकल रहे होते हैं, ताकि वो धुल जाएँ, आँख साफ हो जाए, और उसमें एंटीबॉडीज़ भी होती है ताकि जीवाणु वगैरह को मार सकें। और तीसरे टाइप होते हैं इमोशनल टीयर्स, वो जब हम कोई ज़्यादा खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तब बॉडी से निकल रहे होते हैं, ताकि हमारा मूड वापस से संतुलित हो सके, ज़्यादा खुश ना हो, ज़्यादा दुखी ना हो। क्यों होता है ऐसा? साइंटिस्ट बोल रहे हैं, साइंटिस्ट अभी भी इस बात पे पता कर रहे हैं, कैसे क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बताया उन्होंने कि कुछ स्ट्रेस हार्मोन इसके थ्रू निकलते हैं इमोशनल होने पर, tears working उसके to कारण keep you से मूड balanced जो and है वो healthy. थोड़ा-सा It will get अच्छा हो better. जाता है। You'll see. आँसू की ये है हिस्ट्री। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया हो। चलो फिर एक और बार जॉइन करो, ताकि चैप्टर के बारे पे आ सकें थोड़ा-सा। चैप्टर तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी। आ जाओ फिर से।